Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good Good morning, morning, sir. sir. So, guys, so what happened last night? Tariff has been stopped and stopped for 90 days. The market has recovered, and if you see this, these are futures which are almost 12%. Nikki is also 8%. Currently, it is up. Nikki, abhi tak, it's a market of Japan. Okay, Dow Jones again, US market. अच्छा, S&P नहीं डाला मैंने. Let's put it S&P. So S&P 500, like Nifty, India's 50 stock, it is like top 500 stock of the US. So this is S&P 500, जिनको नहीं पता है. One more thing I would like to say today, the result season has started officially with the TCS. TCS will come up with its report, its result today. So those who are from the previous batch, I have already told you to punch numbers. तो जो quarterly numbers punch किया है, that will be used now. So I would like to know your detail analysis अगर तुम करते हो तो about what happened in TCS. Those who have followed the IT sector and we started it in February at that time. Next is अच्छा GM Beverage is the one. This is the next result probably. This is the alcoholic one. इसका कुछ conference calls होता नहीं है. TCS का conference calls होता है. Now if you want to listen to the conference calls, how to find where to get this conference call? Is it you go over here on search for TCS on the BSC website. Usually you have a conference call ka numbers they give usually, but if you don't get, I will tell you where do you get. The results is today, so उसके पहले अगर यहाँ पे कोई प्रेस रिलीज होगा या ना इन्वेस्टर के लिए होगा तो आई कैन कंट्रोल एफ करके कैन डू कंट्रोल एफ. तो यहाँ पे ये स्क्रीन खुला तो आई कैन डू इन्वेस्टर. आएगा इन्वेस्टर मीट. यूजुअली ऐसा कुछ होता है इन्वेस्टर इफ यू पुट. तो ये दूसरा है इन्वेस्टर मीट इंटीमेशन. सो दिस वाज 21st नहीं तो पहले काफी पहले का है. तो रीसेंट इज दिस वन. लेट अस ओपन. तो इसमें कुछ है तो या यू सी ओ यार 10th April 7 p.m. today will be the earnings calls of TCS. This will be a virtual call and यहाँ पे उसके डायलिंग नंबर्स है. दिस इज टोल फ्री होते हैं. यू कैन कुछ पैसा नहीं लगता है इसका. You can attend the call plus when they ask the name and company, you can tell your name and RK Advisory. It is कुछ background check नहीं होता उसमें. It is for every investor can get it. And then उसके बाद obviously live webcast भी होता है यहाँ पे. If you want to see the live webcast, you can see हो. अभी हर कंपनी का नहीं होता है, बट मेजोरिटी जो कंपनीज वी आर ट्रैकिंग उसका होता है. मैं वही कंपनीज ट्रैक कर रहा हूँ जिसका कॉन्फ्रेंस कॉल होता है बिकॉज वी गेट मोर डेटा अबाउट सच फॉर दिस कंपनीज. So those who have done the quarterly analysis या numbers punch की है, मैंने बोला था 4 कंपनीज के करके रखो. TCS इज द फर्स्ट वन. व्हेन यू ट्रैक अ सेक्टर, उसके मार्केट लीडर्स तो तुमको ट्रैक करने ही पड़ते, वेदर यू लाइक द कंपनी और यू डोंट लाइक द कंपनी. लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटो तो मारुति के बारे में पता होना ही चाहिए. मारुति एंड टाटा मोटर्स के बारे में. इफ आई टॉक अबाउट FMCG तो HUL के बारे में होना ही चाहिए. तुम बाकी कोई भी कंपनीज ट्रैक करो, एनी कंपनीज यू ट्रैक, you need to know about what is going on in HUL and Marico. Second, if you track, let's say, if you, any other, let's say retail industry, if you track the biggest player in retail, if you talk about fashion, it is Aditya Birla Fashion. So you should know about what is happening in those companies. Okay. सर इसमें कौन से नंबर पे कॉल करना है, ये ये मुंबई टोल वाले पे क्या? फर्स्ट वाले दोनों चलते हैं वैसे तो. ओके। कैन तो ये हर एक कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होता है. एग्जाम्पल ये ना जब जब रिजल्ट नजदीक आता है तभी आते हैं. हर कंपनी में नहीं आते. अगर नहीं आते हैं, इफ यू डोंट गेट ओवर ईयर, probably you go on the website. You go on the website, there is investor tab over here.
हर एक वेबसाइट पे होता है. इफ इट्स नॉट देयर, यू कैन ऑल्सो डू कंट्रोल एफ एंड यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इन्वेस्टर कहाँ पे. ओके, कभी कभी यहाँ पे होता है, कभी कभी नीचे होता है भाई. जैसे ये दूसरा है भाई, यहाँ पे नीचे देखो, इन्वेस्टर रिलेशन. So you can, investor relation, can click on this. यहाँ पे होता है probably earnings call. अच्छा, ये पहले क्या है? earnings call तो हम पहला ही क्वार्टर है अभी नहीं. दिस इज वी आर इन Q4 currently. Q1 कुछ डेटा नहीं आया यहाँ पे. TCA शीट. ओके, लेट मी फाइंड. सी दिखा है Q4 रिजल्ट. वॉच ईयर है यहाँ पे, लिखा ही है वॉच ईयर. तो यहाँ पे भी यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट. तो यहाँ पे दिया ही है ऑलरेडी कहाँ से होगा. यू कैन, इट विल स्टार्ट ऑन 7:30 को है. इट विल स्टार्ट 7 o'clock, सॉरी, स्टार्ट हो गया. तो यहाँ पे डायरेक्टली अभी अभी लोग यूट्यूब पे ही करने लग गए. बट वरना यहाँ पे तुम्हारा वो कॉन्फ्रेंस कॉल का नंबर या ना टाइमिंग मिल जाता है. बट बेसिकली BSE वेबसाइट पे ज्यादा क्विक आता है. यहाँ पे नहीं मिल रहा तो देर आर लेस चांस की यू गेट इट ऑन द वेबसाइट. तो ये सब कंपनी का आता है जो भी लिस्टेड है. यू गेट. एंड हाउ टू फाइंड कौन से रिजल्ट्स है, वो ऑन द BSE वेबसाइट, corporates, corporate filings, and then result calendar. So ये यहाँ पे you get the dates. तो आज तो 10 है. So I think ये वीक तो कुछ नहीं. 15th. So now probably from May, if you see, April, so Havels भी है. It is on 22nd April. अच्छा, Hindustan Unilever is again on 24th April. Okay, so 24th April, Thursday. Okay. सर मई में ही है. 2nd को मैरिको है, 8th को डाबर, 16th को इमामी. अच्छा, सब मई में ही है ना. एशियन पेंट्स इज देयर ऑन आई थिंक 8th में. आई थिंक ऑटोज के मई से चालू होता है. ऑटो कंपनीज के दिया नहीं है क्या? ये HUL का जल्दी. ऑटो अभी दिया नहीं है. ऑटो दिया नहीं. ऑटो के यूजुअली मई से चालू होते हैं. मारुति का एफएमसीजी फर्स्ट इज एचयूएल. HUL, हाँ, 24th को ही है. सो यू नेस्ले है. नेस्ले है ये. I think ये भी है. FMEG का भी है सब है ना. हैवेल्स है. थिंक सी एंड HUL, नेस्ले है. फाइन. सो दिस इज व्हाट वी डू ऑन अ. सो ये वीक, ये मंथ में नंबर्स ही अपडेट करने. दोज हु हैव डन विद क्वार्टरली रिपोर्ट, जो मैंने बोला था पहले ही टास्क में कि यू हैव टू पंच क्वार्टरली नंबर्स. ओके, या एनीवन वांट्स टू स्टार्ट? हेलो सर. आकाश, मैं कर दूं स्टार्ट? यस सर. न्यूज़ है टाटा स्टील से रिलेटेड. टाटा स्टील has reduced its 20% workforce from Netherlands plant. Okay. Okay, they have reduced around 1,600 employees from their Netherlands plant. So why this becomes important? Because Tata Steel's consolidated production capacity is around 30 million tons per annum, out of which Netherlands plant draws around 7 million ton per annum. How much And percent? How much percent? Around 24% of total production capacity. Okay. Okay. And talking about in terms of revenue terms, in FY 23-24, revenue was around 2,30,000 crore consolidated, and from standalone Netherlands plant, it is around 78,000 crore, which Okay. is about 34% of revenue. So Okay. 34% of revenue. Okay. yes, so they want to cut down on the cost and improve the margins, because due to weak steel demand and cheap imports from China, they are Tata Steel in European business facing uh, margin pressure. Okay. So to improve on margin, and they have already automated the plant. So their management view is that without hampering the production capacity, they can afford to lay off the 20% of the workforce, and can save around 104 million euros on the Okay. employee cost, which will Good. directly improve their margin in this upcoming fiscal, that is FY 25-26.
Okay. So good sign or a bad sign? It's a good sign, sir. It will improve their balance sheet in this upcoming financial year. अच्छा, तुम अगर For उसमें होते तो टाटा स्टील में, yes, if you were the part of Tata Steel, then good sign or a bad sign? a good sign because it is saving on the no, sir. For employee, it is not a good sign, Yeah. but Okay. from the company point of view, it's a good sign, sir. Fine. Because Okay, it is actually a good sign, but no, this looks a little tricky when companies lays off employees. What happens in this kind of, so this is like a corporate governance problem. Ki next yes, sir. time whenever there is an uptick, people might not go to companies like Tata Steel and all. It's because they are being lay off. Okay, fine. It's a good sign for a company. It's a good sign. Yes, I was a big fan of TCS or maybe IT companies laying off their employees. You saw that, but yes, it impacts the overall economy. Okay, company wise, it's a good sign. But it's what if my brother or my sister or I was working in that company? Okay. yes. Actually, I sir, they have spent heavily on their capex also, so it is not okay. Okay, fine, fine. Sir, I would like to add something on this. Huh. So basically, why these are, planning to shut this Netherlands-based plants because, the in Europe there is a stricter norms regarding the carbon emission. And you see that Europe from the next calendar year onwards, it has been shifting towards green steel. So green steel, what is that? Like if 1 million ton steel is produced, then the emission norms are kept to 1.8 million per ton. So currently, this Netherlands plants, Tata Steel is operating, has a emission in nearly 2.3 to 2.4 per ton. Okay. So that's why they are transitioning and they are laying off just because like they are moving towards the greener steel. So for green steel, they need to have invest in this electric arc. So there is a furnace. So what's like like आपका steel होता है, it is been derived from the iron. Correct. So in order to remove the impurity from the iron, there is a process called furnace. Hmm. So from in that process, the वो आपका iron ore is heated around 1500 Celsius ranging. So for that, they are currently using like आपका coal and other fossil fuels. Hmm. And for that, so because of this, their emission norms are not in line with the Europe's new emission norms. So they are transitioning towards the electric arc furnace. So that's why they are, cutting off these layoffs. Okay. Yes, sir. And they will be transitioning to that electric arc furnace by FY 2030. But 130. Okay. Yeah. Still time. Okay. Yeah, it will take time, sir. But is it anything on the demand or is it just because of the No, transition? yeah, so this they have the two furnaces there in Netherlands. So Hmm. for they will continue with this old furnace that is being using the fossil fuels, and they are being transitioned towards the another one towards electric arc furnace. Also, sir, because the demand in Europe is still very low. Because आप देखोगे like most of the countries are struggling to grow. Like the major powerhouse of Europe is Germany, and Germany is struggling with this automobile industry itself. So Correct. their demand side is also very poor from Europe. And plus this, the add-on norms like they have to transition towards a greener steel is further, drag the company's performance. So it is a bad sign. Even this, na, that China is dumping and Akash said is dumping their steel But because sir, of like Europe has already has a quota for each country. If they go beyond that quota, then the tariff would be 25%. So it hardly matters. Like they have a quota for every country. Like okay. 10 million, 1 million still for India, 3 million still for China, like Vietnam भी ऐसे ही. And there is a news like I have shared with you also, like जो उनका the Department for Remedial Action has found that China is already been dumping steel in that country. So they have imposed the dumping duties 15 to 30% depending upon the producer on China, Japan, and as well as Vietnam already in the second week of March.
But Hemant, what is happening is that I agree this, but what I came across an article, I'm not sure about it. It's saying that they already, when let's say India and Europe has a bilateral treaty, so China dumps their steel in India, and then India sells it to Europe. Example, I'm just giving an example. So if they So have a treaty, yes, they do it this way, and this is also said to be one of the dumping steel problems. yes. So this is the main reason why the Europe has imposed the restriction on Vietnam as well. Because China, if you see, like the Chinese supplier has been rerouting to all those nations, Correct. even India from Vietnam. And Correct. all these Chinese players have heavily invested in Vietnam just to reroute these their articles to the different nations. So that's why the Europe has categorically mentioned Vietnam as well. They have slammed that dumping duty nearly 30 to 40% Okay. on Vietnam and Japan as well. Okay. Okay. And आपका China has a limited presence or negligible presence in Indian operations because there are Indian players already, Yeah. and plus like वो जो like Galwan and India standoff हुआ था like in COVID times is further like the stringent measures have been placed by the government regarding to investments from the Chinese players. Correct. India, China don't invest in India. Correct. Anyone else? Abhishek? आज तो कुछ ऐसा खास कुछ मतलब अभी एफएमसीजी इज थोड़ा लाइट रिजल्ट्स आ रहे तो दे डोंट गिव एनी दे बिजनेस अपडेट्स तो दिए थे लास्ट वीक सो Okay. लुकिंग एट बिजनेस अपडेट नंबर्स see muted growth was already expected this quarter also and quarter one quarter two भी also is likely to be muted only because crude benefit तो आपको after quarter one ही दिखेगा quarter one quarter two One quarter two, थोड़ा right. वो derivatives में you'll have to take that processing cost and then that moderation will come but now the catch here is why after Q2 this thing will pan out is it never happens this way that if a FMCG company does a price hike in a quarter because of whatever reasons like demand slowdown sorry for whatever reasons like Huh. input Commodity. cost increase it Huh. never happens that they roll back the price hikes okay so Correct. वो तो कभी it never happens so then you start seeing margin improvement but Correct. margin improvement will be there but वो जो top FMCG companies are there like HUL or something I personally feel that they are at a stable or whatever consolidated phase now and यहाँ से that growth incremental opportunity is only for smaller firms so HUL वगैरह का क्या है कि they will continue to grow at the rate they are growing Correct. whatever that 3% 4% whatever is there at least I don't know. I mean, I can be wrong, but हो सकता they might not see that growth which they saw, 5 years back or 6 years back. Correct. But Obviously. smaller, हाँ. But वही large cap में there are companies like GCPL का numbers was good. Marico is expected to perform very well. उसका थोड़ा कोपरा का moderation होगा तो it will definitely bounce back. We saw AWL number, which is very good. AWL ka numbers. AWL is formerly Adani Wilmar. See, they are basically banking on their because this edible oil is a key raw material for some. These people manufacture edible oil. तो Correct. उनके लिए it's good, but the food business really saw very very good numbers. I think about say 28% growth आया था ये quarter में, which is very good year on year. वो जो उनका and their food segment में they sell all those atta and whatever that besan and all those things. So उधर demand है. Again, they also highlighted like Dabur, like Marico that rural demand still continues to outpace urban, which will continue for some time now. Okay, and of course ये tariff का तो FMCG में कोई impact है नहीं. And I purely feel that yesterday whatever happened in the FMCG index
Okay. I think every stock was 2% up, at least minimum. Okay. If you every see stock was HUL was 2%. up 2.5%. I think GCPL was maximum 4%. GCPL, Imami was 3%. Britannia was 4%. This was basically the safety net. Okay. कि इतना volatile times में where I can shift the money, because going forward in this uncertain times, there is only one thing that is surely going to happen is your money rotation across sectors. You won't find that every sector will be firing up like what happened during COVID, because COVID and tariff mein there is a huge difference. Because I personally saw a lot of posts, on LinkedIn and whatever I read, that people have been comparing COVID to this period and saying that buy. But COVID was we have to understand, COVID was not a man-made disaster. I mean, at least from what we can understand and what we read, is COVID is not a man-made disaster, but this is obviously a man-made disaster. नहीं बोल सकते. It's a man-made thing, Man-made and thing, हाँ. we don't know आगे क्या होने वाला है. Like for example, yesterday you take, कल market बंद होके for even 2 hours, we didn't know what was going to happen, and then Correct. suddenly he says there's a 90-day pause. तो इसमें क्या होता है कि मार्केट विल स्टे वॉलेटाइल, एंड देन व्हाट प्रोवाइड्स यू अ सेफ्टी नेट इज एफएमसीजी, कि वहां पे वो वॉलेटिलिटी नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा, बिकॉज एफएमसीजी कंपनीज के लिए मैक्सिमम आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन ही होता है. मेरे को नहीं लगता है कौन इतना एक्सपोर्ट तो कोई करता नहीं है यहाँ से. ओके. तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो एफएमसीजी इज अ सेफ्टी नेट. सो Yeah. दैट्स व्हाई आई फील एफएमसीजी वाज in focus yesterday. I don't think so any other sector was rallying. I think auto थोड़ा ऊपर था. I Auto was don't know also why. down. Auto was also down, I think. Auto was also down. Okay. हाँ. हाँ. तो वही है. So uncertainty continue होगा तो sector rotation होगा. So that's why I feel only two sectors, that is Nifty travel and tourism, and Nifty FMCG will continue to provide that. Sorry. Yeah, sorry, no, go ahead. नहीं हो गया. हाँ बोलो. हाँ. Yeah, the reason, I don't, as an analyst or whatever I have learned in this 10 years, I never tracked exports. I knew that, this always happens, tariff cuts, export duty, import duty, and this all things. I was always focused on the Indian consumption. Even for that sense, pharma, I was tracking pharma, but I never went out of India. मुझे इंडिया का ही फोकस करना था. बाहर जो हो रहा है, इट इज ऑल बोनस. और आई विल So से that's what 20-30% I will, always. So currently, if I talk about FMCGs, okay, ये तो हम पता है, if you know, Abhishek, we are talking about from Imami से हम बात कर रहे हैं from Correct. February. We're talking about Imami के. I think that if the FMCG cycle turns, this will be the one, because छोटा player है overall. Correct. कि अगर इसके मार्जिन एक्सपांड हुए तो सीधा उसके पैट पे इम्पैक्ट आता है. और इसका तो रूरल फोकस सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा है. अर्बन में तो कोई कौन यूज करता है अर्बन में कोई बोरो नहीं. प्लस. I आई डोंट don't नो. know. पाउडर भी कोई यूज नहीं करता है अर्बन में. Correct. तो इमामी इज ओके, बट I मैं actually coincidentally I just sat down this morning to start punching Imami's quarterly numbers, because result आ रहे हैं. तो I was just sales growth में डाल रहा था. तो वो एक पीरियड था. आई मीन वो 2020-21 में when they saw that, वो 21-22 में when they saw that incremental growth जो आया, फिर वो रूरल का जो प्रेशर आया, तो वो साइकिल वो लोग का पैन आउट हो गया है. wherein even the stock went from 380 rupees to I think 800 तक गया था. उसके बाद it's back to 600 now. तो वो I don't think so, because क्या होता है ना, सी यहाँ पे देन अभी अगर आपका 2021-22 में जो ग्रोथ हुआ, फिर देन वो आपका हायर बेस पे आ जाएगा अभी. ठीक है. तो हायर बेस पे उतना इंक्रीमेंटल ग्रोथ देना थोड़ा डिफिकल्ट है. एंड आई फील इमामी का कैसा है ना, इमामी को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज नाउ देयर वो केश किंग और उसका तो दे आर डूइंग दैट पोर्टफोलियो रिहॉल, राइट. वो किसको अपॉइंट किया था, बीसीजी या किसी को तो अपॉइंट किया था ना कि वो करने के लिए. तो वो थोड़ा टाइम लगेगा. एंड उनके प्रोडक्ट्स जो है ना, वो ज्यादा विजिबल मार्केट में, अर्बन मार्केट में नहीं होते हैं. केश किंग तो मैं फिर भी बोलता हूँ ठीक है, इफ यू गो टू एनी रैंडम what do you call, वो तो और भी डिफिकल्ट है. इवन इफ यू गो टू अ रैंडम सैलून in I know only about Mumbai. If you go to random salon in Mumbai, you'll still find Navaratna only. Okay. You will find Navaratna और Bajaj Almond. Kesh King थोड़ा कम ही दिखता है. तो उस हिसाब से yes, रूरल में आ सकता है फोकस, बट इसका बेस थोड़ा हायर होगा.
बट लेट अस सी बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर का तो रिजल्ट बहुत ही खराब आया है। मेरा आई तो वाज फोकस ऑन मार्जिन एक्सपेंशन कि वंस द हाँ मार्जिन एक्सपेंड्स, हाँ सी इसको क्या है, इसको पाम ऑयल का तो मेरे को लगता नहीं कोई इम्पैक्ट है, हाँ। क्योंकि पर ये हो गया पाउडर ना, के लिए इन्फ्लेशन पाम ही ऑयल नहीं प्राइस हाइक मिलता है। हुआ है ना, प्राइस हाइक हुआ है एंड करेक्ट। बाकी के कॉस्ट भी कम हो गए ना। हाँ मेरे को आई मीन वो वो पाम ऑयल का या वो इमामी में मेरे को दिखता नहीं है, बिकॉज इमामी का कुछ पाम ऑयल का पाम ऑयल रिलेशन से है कुछ क्या? नहीं, क्रूड ऑयल है ना, क्रूड से है ना। नहीं, ये टैल क्या बनाता है, टैल्कम टैल्कम है बनाता ना, है। मतलब टैल्कम है, फिर वो तेल भी तो उधर से क्रूड से ही बनता है ना। अरे हाँ वो भी है, हाँ तो वो है तो ठीक है, उधर थोड़ा प्रेशर। नहीं मतलब आई वाज वो सेइंग कि तेल तो वैसे भी गया हुआ है सर उनका, वो केस किंग तो वैसे भी कितना खराब रिजल्ट पोस्ट करता है नहीं, आई वो वाज तो। टॉकिंग अबाउट व्हाई इमामी। आई वाज टॉकिंग विद दिस वन ऑफ फंड मैनेजर पहले, हाँ मतलब हाँ पहले में। तो उसका ऐसा था कि यार सब एचयूएल तो अच्छा कर रहा है, पता है, इमामी, अमेरिको इज डूइंग गुड, नेस्ले इज डूइंग गुड, लेट्स फाइंड समथिंग व्हिच इज नॉट डूइंग गुड, हम्म, ऐसा। तो लेट्स से इमामी इज नॉट डूइंग गुड, तो इफ द सेक्टर रिवाइव्स, तो हम्म, प्रोबेबली इसमें लेट्स से एचयूएल ग्रोस 10%, तो इमामी माइट ग्रो 15%। दैट्स द करेक्ट। ओनली कैच। कंपनी तो है ही वो नहीं खास, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्टर, इफ नहीं, एवरीवन बट इज अगर एफएमसीजी देखना है ना सर, हाँ ठीक है, देन आई वुड सजेस्ट कि लेट्स फोकस ऑन मैरिको, बिकॉज हाँ आई मीन मेरे सी बिकॉज इफ यू सी लास्ट 2-3 क्वार्टर का व्हेन मार्केट एफएमसीजी हैज बीन मतलब वेरी वेरी पुअर उस सेंस में, ठीक है। मैरिको हैज शोन गुड मार्जिन, मार्जिन मतलब मार्जिन, हाँ सी डिक्लाइन वहां पे जो एचयूएल 200 पॉइंट का बिप्स का डिक्लाइन दिखा रहा है मार्जिन में, वो मैरिको इज जस्ट शोइंग 100, तो स्टिल यू फील कि इतना उसका कॉस्ट भी होके भी, ठीक है, उसका भी पाम ऑयल का एक्सपोजर है एंड एवरीथिंग, फिर भी दे आर शोइंग बेटर वॉट एवर वाटर मार्जिन का उतना खराब नहीं आ रहा है एट दिस, बिकॉज इफ यू सी मैरिको का कितना आया उसने वो 99। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन ये बार भी उसने डिफेंड कर लिया ना। उसने हम्म बोला ये बार दिस टाइम आल्सो इन दिस बिजनेस अपडेट इफ यू सी दे सेड दैट वी मेंटेन द Q3 मार्जिन्स। Q3 मार्जिन, हाँ। तो सेल्स नहीं आ फिर रहा है भी इसमें। सी बिकॉज वो थोड़ा प्राइस का इम्पैक्ट आके भी saying we are maintaining, they are seeing the volume growth. वॉल्यूम ग्रोथ हो Okay, गया, हाँ। correct. So वो उसके वजह से and yeah of course parachute में they did that they did a price hike and उन्होंने वो भी कम किया, उसको क्या बोलते हैं वो कुछ तो बोलते हैं उसको, एमएलएच माइलेज हाँ क्या हाँ उसको कुछ तो बोलते हैं वो करेक्ट, लोग, हाँ। वो कम कर देते हैं वो लोग उसमें। मेरी मे बेसिकली कॉल्ड इन्फ्लेशन, तो वो है, वो एक है, बट आई फील दीज टू, आई मीन एफएमसीजी में यू शुड लुक एट मैरिको, इट्स वेरी गुड। वेरी तो गुड, ओके। हाँ टाटा कंज्यूमर एक बार के लिए तो वो भी देख सकते, बिकॉज टी का इफ यू बीन फॉलोइंग टी प्राइसेस, हम्म देन टी प्राइसेस काफी गिर गए हैं करेक्ट, लास्ट मैं तीन भी वाज चार वाचिंग महीने अबाउट में। कॉफी भी गिरा ना, टी कॉफी। कॉफी गिरा, कॉफी का बट नहीं आएगा सर, वो जब तक ब्राजील का वो इशू हाँ, सॉल्व इशू नहीं रिसॉल्व होता नहीं है, होता तब तक नहीं वी आएगा, हाँ। कांट सी एनीथिंग, बिकॉज वो नहीं होगा, वो सी दैट इज अगेन नॉट अ मैन मेड थिंग, वो ड्रॉट हो गया है तो यू कांट डू एनीथिंग। करेक्ट, हाँ। तो वो कोको का तो इट्स वो, बट नेस्ले का थोड़ा सा दे वेर सेइंग लास्ट टाइम कॉल पे कि वो कुंभ का कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज दे डिड सेट अप सम स्टोर, मतलब वो क्या बोलते हैं वो लोग, वो स्टॉल्स एंड ऑल स्टॉल्स, इन, हाँ। तो वहां पे दे सेड देखा थोड़ा सा वो इम्पैक्ट वहां पर आ सकता है। बट यस अगेन दैट सेम थिंग आई सेड इन द बिगिनिंग दैट हम्म ये सब जो टॉप कंपनीज है दे विल कीप कंटिन्यूइंग एट द पेस दे आर गोइंग। वी शुड प्रॉब्ली लुक एट कंपनीज लाइक ये जो अभी हमने बात किया, हाँ, तो दे देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर इज बेटर, हाँ। देयर, हाँ। एंड और कौन सा है ये सेक्टर तो फिर ये सही मतलब है। सेक्टर में आई थिंक गोदरेज कंज्यूमर इज आल्सो उस दिन पॉजिटिव था, पूरा मार्केट नीचे था एंड द नहीं वो तो उसका स्टॉक ऊपर है। नंबर्स वाज वेरी गुड करेक्ट। एक्चुअली, तो तो वही वो मतलब इसीलिए। एक्सपेक्टेड कि सबके नंबर्स ही, मतलब आई एक्सपेक्ट ना, सिंस ही आई एम फॉलोइंग दिस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, मतलब एफएमसीजी मेरे पास एचयूएल लास्ट 1 साल से, मतलब आई एम जस्ट एवरी क्वार्टर में वही पूछता है कि ग्रोथ आएगा, पर वो आ नहीं रहा है कहाँ से, तो नॉट इवन नहीं आई एम आता। लुकिंग एट कि ग्रोथ आ रहा है कहाँ पे। तो आई हैड दिस एचयूएल इन माय पोर्टफोलियो फ्रॉम व्हेन द मार्केट वाज पीकिंग आउट, आई वाज, लोग बोल रहे तो एचयूएल क्यों ले रहा है ना, आई एम ओके, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट, मतलब मुझे ग्रोथ के लिए नहीं रहा है, मुझे इंटरेस्ट, आई वांट टू जस्ट फाइंड कि ये टर्नओवर कब होता है, जिस दिन टर्न अराउंड होगा उस दिन आई नो वेयर टू इन्वेस्ट। तो आई हैड HUL था, नेस्ले है, ब्रिटानिया, ऑल आई हैड, बट व्हाट आई हैव सीन इन दिस लास्ट 1 ईयर इज दैट दिस टॉप कंपनीज उधर ही है, HUL ज्यादा गिरा भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो जब इलेक्शन आया तो बढ़ गया था वो, मतलब नहीं वो गिरा था, वो इलेक्शन के टाइम गिरा पे, था, हाँ, उस वो दिन बढ़ गया, बजट के टाइम पे बढ़ के फिर उधर बढ़ ही गया, रुक गया। उधर रुक गया, करेक्ट, बट वो मतलब ऐसे कि ना गिरा है ना बढ़ा है। सो हाँ आई एम जस्ट फाइंडिंग दिस ट्रेंड इवन फॉर आई मीन दैट ब्रिटानिया। कंपैरेटिवली
जब मार्केट पूरा इंडेक्स ही 20% गिर गया एंड हाँ एवरी स्टॉक करेक्टेड अबाउट 20 30 50%, हाँ HUL these का ही है। companies just corrected about say 15-20%. I वो don't सेफ्टी think नेट तो हमेशा रहेगा. मतलब HUL का इफ यू लुक एट बिफोर ना कि उसके जो लेट्स से आई हैव बिफोर द रिजल्ट्स बिफोर द हाँ हाँ इलेक्शंस, हाँ. तो वो उधर ही है स्टॉक, मतलब इट हैज नॉट वो कंसोलिडेट उधर ही होता है. आप चार्ट में हाँ चले जाओ तो उधर ही रहेगा. हाँ इधर ही है। ठीक है, वो थोड़ा गिर गया वहां से नहीं ये तो यहाँ से सितंबर. बढ़ा था ना, वो रिजल्ट के बाद यहाँ से बढ़ा था, बट मैं हाँ इफ वो सर, वो इन्वेस्टेड तो ओवर वो हियर, क्यों बढ़ा था मुझे भी नहीं समझा. हाँ वो ठीक क्यों है वो 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 क्यों, रिजल्ट्स मतलब आया ऐसे तो ही आई उसको स्टिल चला दिया था ये रिमेम्बर, लोग ने. आई स्टिल रिमेम्बर बाइंग समवेयर ओवर हियर ना, ये टाइम पे इधर ही है अभी तक स्टॉक. हाँ. ओके सुगोश, वुड यू लाइक टू से योर न्यूज़? Yes, sir. Yes, sir. I read today an article from ETE, and there I saw that the demand for smartphone in rural tier two and tier three cities are rising in double digit, like 19 to 20%, rather than tier one city, which was top before COVID or during that COVID time. And now it's tier two and tier three cities. This is due to the increase in the disposable income. And other thing is that the 5G connectivity in the rural areas has improved a lot, sir, because all the Geo, Airtel, they are providing good 5G network in rural areas, and people are shifting from feature phones, 4G phones to 5G phones. So the next demand would be coming from the rural areas, kind of thing. बट 5G And phones काफी महंगे आते हैं सुगोश, इट्स yeah. नॉट दैट 5G phones are not that cheap enough. Huh, and yes, sir. And there was also a data point in that the rural average selling price was 8,500 first हाँ earlier, हाँ and it's shifted to 17,100 now. So oh they are going to more premium versions of the smartphones. okay And that's why the 5G will impact, sir, because 5G phones are now available at 12,000 plus range. At 12,000, you can buy a 5G phone. So there might be increase in this. okay fine. And the Dixon is the player, sir, which does contract manufacturing, which is leading in smartphone contract manufacturing. Okay. Other players are there, but they are small one. But Dixon is the big player. I would like to add this one point. I was going through one of the ET Now ka, sorry, FF, Financial Express ka article. Now, what I found over here, there are two stocks. This was the article, two stocks done 1 lakh crore, 1 lakh into 1.8 crores. So I was just curious to see kaun se stock the. So I was looking at this article, what I found over here. So this is two stock. One is this PG Electroplast and Transformers and Rectifiers. तो ये तो मुझे नहीं समझा कंपनी क्या है, but what struck me is I was just reading this. क्या है? I was not knowing which is this company. PG Electroplast. If you go and see the market cap of PG Electroplast, it is I think around mid cap. अच्छा कंपनी है 54,000 सर, crore. हाँ अच्छा कंपनी है, बट इसका हो गया अब. हाँ हो गया. But वो what I आप found चार्ट is उसका देखोगे ना, प्राइस चार्ट, तो समझ correct. जाएगा आपको. नहीं मेरा ये नहीं था. तो ये ठीक है 24,000 crore ना. If you talk about its P तो फिर 10 times बेटर देन डिक्सन वैल्यूएशन. better than Dixon. वही value wise it is better than Dixon. But तो what आप I वो देख सकते हो ना, सिरमा. किसमा सिरमा सिरमा SGS टेक, सिरमा, हाँ सिरमा भी है. वो भी है. वो कौन सा है, वर्टुसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, पर SY है जो वो. स्मार्टफोन का डिमांड जो होगा इंक्रीज, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट इस पे करेगा ज्यादा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है ना, या EMS मल्टीपल ये ब्रांड्स. इलेक्ट्रॉनिक्स. बट ना मुझे यास में क्या मिला इलेक्ट्रोप्लास्ट में पढ़ते पढ़ते ना, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट दैट ACs एंड ऑल. So company operates in 4 business. The product verticals encompasses room air conditioners, washing machines, air coolers, remains the leading revenue drivers, contributing 61% to its total revenue. So this what strike me कि हम तो इसकी बात कर रहे थे कि कूलर की डिमांड. अंजल, for your information, this company is into making of these products which we are talking about, which you are also bagging कि this will grow. हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल ACs की डिमांड इंडिया में बढ़ेगी बिकॉज ऑफ XYZ रीजन प्लस 5 स्टार जो भी तुमने वो रिसर्च किया है. सो थॉट ऑफ टेलिंग यू गाइस कि दिस इज आल्सो VOPL भी है सर. क्या हुआ? VOEPL इज ऑल्सो देयर, बट उसका प्रॉब्लम एक स्मॉल ही है कि प्लेयर. VOEPL इज वर्टुसो, क्या वर्टुसो इलेक्ट्रा, ऐसा कुछ तो है. ओके, अच्छा
बट उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका 80% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम वोल्टास। अभी एक कंपनी से हाँ इतना रेवेन्यू आएगा, वोल्टास का डिमांड गिरेगा तो वो भी बंद हो जाएगा फिर। करेक्ट। अच्छा तो वो है। कौन सा कंपनी है वो? ढूंढो ना सर स्क्रीनर पे एक बार, VOEPL डालो एक बार। बी बी वी बी वी 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 फॉर वैन, वी। हाँ ये वर्टूसो ऑप्टो होता ना, हाँ ये हाँ व्हाट इज ऑप्टो। ओके, पर ये सब छोटे कंपनी था ना ऐसे। छोटा कंपनी है वही है छोटा, बट वही मतलब वो फिर वो ही आ जाता है ना सर कि वोल्टास लेना है और स्केल उसी पर रखना है कि छोटा हाँ कंपनी में स्केल बढ़ाना है। नहीं बट इसका क्या होता है कि ऐसा ना इंस्टी पे कोई सुनता नहीं है इसके बारे में। नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं बोलता। तुम फंड को पिच करने जाओ तो बोलेगा बाहर में जा, मेरे को नहीं करना है। हम्म। तो ये कम से कम मैं वो क्यों देगा पीजी पल कोई सुनेगा तो तुम्हारा बात है ऐसा है। अभी सुनने लगा है, अभी काफी 24,000 इंटरेस्ट करोड़ आया है सुनने उसमें, लगे काफी हाँ। म्यूचुअल फंड्स ने एंड उठाया है मार्जिन फंड। काफी 10% है तो मेरा था कि ठीक है यार 10% है तो डिक्सन को तो काफी ज्यादा है। डिक्सन इज डिक्सॉन का न्यूज भी था ना सर, वो 1000 करोड़ का प्लांट डाला ना चेन्नई में, अच्छा नहीं वो तो लैपटॉप डिक्सन इज मैन्युफैक्चरिंग। डिफरेंट लेवल, मतलब उसका तो बहुत काफी बड़ा हो गया मार्केट है ना, राइट। 1 लाख अभी करोड़ उसका का तो। स्मार्टफोन 50 मिलियन यूनिट्स पर तक गया है सर, मतलब 50 हाँ मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। But I think Dixon was always, a laptop manufacturer and washing machine वॉशिंग manufacturer मशीन rather था than उसमें हाँ। mobile. देन इट वो इसके बाद पिकअप हो गया, कोविड के बाद इट पिकड अप। हाँ। फिर वो चाइना ही पूरा बंद हो गया था ना, तो यही था एक मैन्युफैक्चर इंडिया में। हम्म। टीवी में था लार्जेस्ट एलईडी मैन्युफैक्चरर्स। सो ये दिस वाज अ कंपनी टू लुक एट, मतलब मेरा ऐसा था कि तू कवरेज में हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी एंड इसका, तो दिस इज आल्सो कंपनी टू लुक एट कि क्या हो रहा है राइट इसमें। राइट। एंड यस। लुक्स बेटर पर्सपेक्टिव डेट नहीं है इसके पास, काफी कम है। डेट टू इक्विटी इज लो। ओके फ्री कैश फ्लो इज नेगेटिव, मतलब क्या हो रहा है आई डोंट नो। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द आर्टिकल एंड मुझे ये कंपनी मिला, आई हैव नेवर सीन दिस कंपनी। बट था 24,000 करोड़ का मार्केट कैप था, तो डिसेंट साइज है ना मिड कैप स्टॉक। प्रॉब्ली राइट। करेक्ट हुआ होगा तो आई एम नॉट श्योर, करेक्ट भी नहीं हुआ है। इट इज वहां पे ही है स्टॉक। तो पर मेरा ये था अभिषेक प्रोस्पेक्टिव कि दिस स्ट्राइक मी कि 61% इज कमिंग फ्रॉम एयर बिजनेस, ये एयर कंडीशन है ना, और हम इसी की बात कर रहे हैं। मतलब दिस इज जस्ट मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कोई कंपनी प्रूव करने क्यों अच्छी है तो दिस आर द रीजन कि अरे भाई इसका पूरा का पूरा एयर कंडीशन से आ रहा है। एंड आई नो कि ब्लू स्टार इज ग्रोइंग। ये रिसेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू स्टार, ये अंजल ना, अंजल ने काफी ज्यादा ब्लू स्टार पे रिसर्च, ब्लू स्टार्स वोल्टास सैमसंग और एलजी पे इसने बट रिसर्च ब्लू किया था स्टार का भी इंडस्ट्री। डायरेक्टली एसी नहीं आता है ना, वो किसी के लिए मैन्युफैक्चर करके ऐसे कुछ है ना उसका। कौन? ब्लू स्टार No, इंडस्ट्रियल एसी ज्यादा है ना उसका। हाँ नहीं इंडस्ट्रियल भी है और ये भी है उसके home दोनों है किसी सर, को। room AC दोनों नहीं है। दोनों रेवेन्यू सेगमेंट है। अच्छा कमर्शियल इसको पता होगा अंजल। और ये क्या ओके बोलते हैं, ओके। अंजल आवाज बट नहीं आ बट रहा यूज किसी आपका। ने होता है बजाज उसको इलेक्ट्रिकल यूनिटरी देखा क्या? प्रोडक्ट में डालते हैं वो सेगमेंट। ओके। क्या किसी हुआ? ने बजाज इलेक्ट्रिकल देखा? नहीं बजाज नहीं देखा, बजाज देखा देख, अंजल तुमने? नहीं सर नहीं। मार्केट कैप और सेल्स सेम है। बजाज का? हाँ, तो फिर सोचो उसका वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर्स तो फिर बजाज इलेक्ट्रिकल्स, देखो सर इसका मार्केट कैप कितना है, फाइन एंड फाइन, प्रॉफिट एंड लॉस देखो। 100 करोड़ है। हाँ, कुछ करता नहीं है बट आई मीन जस्ट नहीं वो कंपैरिजन तो बेस के लिए। एफएमईजी में है ना, वो मेरे ख्याल से एसीज में नहीं है ना। ये फैन बनाता है, वो फैन और फैन है लाइट। ना। फैन में तो कंपटीशन बहुत है ना अभिषेक यार, हेवल्स करेक्ट। है फिनोलेक्स है। एसी में कौन है? सर हम्म। ब्लू स्टार इसमें नहीं है, और ब्लू स्टार का मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है। हाँ अभी नहीं याद है एसी में तुमको? नहीं बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई जस्ट सेड इन पर्सपेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, बट ये सॉरी वैल्यूएशन, बट इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ही खराब है, बहुत खराब। बजाज इलेक्ट्रिक को कंपटीशन काफी है, ह्यूज कंपटीशन बट है। हाँ, बट अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल स्पेस ही देख रहे हैं देन आई थिंक वी शुड आल्सो डिस्कस ऑन No, बोथ we are का not talking आईपी about में। electricals. I am अच्छा talking ओके। specifically only about ACs. एसी ओके ओके क्योंकि ओके गर्मी फाइन बढ़ ओके। रही है ना, हाँ तो हाँ। तुम देखोगे तो ना काफी सेल हो रहा है, प्लस ये डार्क स्टोर जो बढ़ रहे हैं, डार्क हम्म। स्टोर्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ वो एसी, क्या बोलते हैं वो, कूलिंग। बट हाउ हैज बीन द डिमांड, मतलब ऑफ कोर्स अंजल इज ट्रैकिंग तो मुझे जस्ट जाना है, बट हाउ हैज बीन द डिमांड फ्रॉम अदर प्लेयर्स, लाइक अभी मेरे घर पे आई डोंट हैव एनी ऑफ द लिस्टेड प्लेयर्स का एसी। ओके मेरे तुम्हारे पास घर पे कौन एक सा है? रूम, हाँ मेरे घर में तीन एक वो ओ जनरल का है, ठीक ओजन पे है, हाँ। एक है दो है मीडिया का, कौन सा? मीडिया मीडिया MIDEA, अच्छा ये ओके। चाइना में लिस्टेड है सर। ओके ये कहाँ से लिया सर तुमने? सर, मैंने इसका रिसर्च किया था एंड एक कि एम्स्ट्रेड का है, एक एम्स्ट्रेड का, आई डोंट नो एम्स्ट्रेड नहीं तो किसका है। अभिषेक वी आर हाँ नॉट टॉकिंग अबाउट होम एसीज मेजरली।
Okay. I will tell you what is the crux we are talking about. हम जो इतना others also listen. We are talking about so many. Yes, तो ठीक है. होम एसीज में तो काफी सारा कंपटीशन है. सैमसंग है, एलजी है, मेरे घर पे सब एलजी है. Okay. Then ओजेन है ना. If I want to go to much premium product, ओजेन है. Okay, Samsung depends. Samsung अगर मेरा इकोसिस्टम Samsung का तो I will buy Samsung. फिर ब्लू स्टार तो मेरे घर पे नहीं है ना, डाइकन है मेरे घर पे. सो मेजर वाज द कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, क्योंकि वहां से डिमांड काफी ज्यादा आ रहा है. ये कोई भी प्लेयर उसी में नहीं है. तो हमको ब्लू Okay. स्टार एज अ होम देखना ही नहीं है, क्योंकि होम का मार्केट भी छोटा है. तुम देखोगे तो देखो होम का मार्केट कब बढ़ेगा. तो तुमने तुम्हारा एसी कब चेंज किया लास्ट? 10-15 5 साल हो गए 5-10 साल. हाँ. तो वैसे भी वो पीरियड तो बहुत कम है. बट जो इसके एसीज होते हैं तुम्हारे कमर्शियल के, वो काफी ज्यादा जल्दी करने, क्योंकि वो बहुत यूज होते हैं. द रिप्लेसमेंट साइकिल इज ह्यूज इन दैट. एंड क्या हो रहा है ओवरऑल, इफ यू लुक एट नेस्को ऑल्सो, नेस्को हैज सेड दैट पीपल आर कमिंग बैक टू ऑफिस. लोगों ने वापस ऑफिस लेना चालू किया है. एंड वो रेंट मतलब वापस बढ़ रहा है. ओवरऑल रेंट नहीं, सॉरी, जो वेकेंट स्पेसेस वापस फुल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पीपल टेलिंग एवरीवन टू कम टू ऑफिस. तो ये एक डिमांड है. सेकंड डार्क स्टोर्स का डिमांड है. एंड थर्ड ये कमर्शियल में तो है ही. तो ये सब वाज पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू ब्लू स्टार. एंड हाँ, Okay. वापस बढ़ रहा है कि एसी तो बढ़ रहा है, तो एसी तो मतलब गर्मी तो बढ़ रही है, तो एसी तो लगेंगे. अभी तुम कुछ भी ऑफिस लो, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ न्यू एसी, क्योंकि मेरा जो एसी है शायद से 3 स्टार ही है, तो ये ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, तो मुझे 5 स्टार एसी की तरफ जाना है. तो ये एक डिमांड अलग से आ रहा है. तो मतलब हाउसिंग तो एक एडिशनल डिमांड हो गया ब्लू स्टार के लिए. बट ओवरऑल व्हाट आई सी इज द कमर्शियल डिमांड इज क्वाइट हाई. प्लस तुम्हारे ना, इफ यू सी वो आजकल जो नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं ना, तो बिल्डर्स ऑलरेडी एसी लगा के दे रहे हैं. हाँ, ये डिस्कस किया था. ये Correct. डिस्कस किया था ना हमने. हाँ, तो वो भी एक है कि वहां पे भी मैंने ब्लू स्टार देखे हैं काफी कंपनी इसमें, कि कोई कोई बिल्डर्स के पास डायरेक्टली ब्लू स्टार की जा रहा है. और ब्लू स्टार इज गुड इन इंडस्ट्रियल. उसका कॉन्टैक्ट ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू सैमसंग एंड एलजी. ऐसा है. सर मैंने ये जो अभिषेक ने अभी बात किया ना वो जनरल का, हाँ. तो मैं जब फिजिकल स्टोर डीलर के पास गया था रिसर्च के हम्म. लिए, हम्म. तो उसने वो जनरल मेरे को बताया कि हम्म. लाइक ये जो पहले कभी अगर कोई एसी यूज करता है ना, तो वो जनरल लाइक हाई प्राइस पॉइंट पे आता है। हम्म. और वो मतलब उसका सारा जो मैकेनिज्म है, कूलिंग पावर है, वो बहुत अच्छा है। हम्म. लेकिन वो बाई नहीं करते लोग, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा है। जैसा अगर आप हाँ. 1.5 टन का अगर लो और प्राइस कंपेयर करो, तो ब्लू स्टार का लगभग 38,000 है, पर वो जनरल 44-45 जाता है। और क्या बोलते हैं ये, सर ब्लू स्टार का जो है ना, हम्म. अ, अगर हम देखें तो उसका सर मल्टीपल फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहा है। उसका मैनेजमेंट खुद बोला था कि एसी में वो ग्रोथ देख रहे हैं, लाइक होम एसी हो गया या फिर कमर्शियल एसी। हम्म. और उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, मतलब ओवरऑल वो ग्रोथ अभी देख रहे हैं ऐसा। और उन्होंने बोला था कि अभी हमारा लाइक मार्केट ग्रोथ होगा 15%, अभी 14% है, हाँ. वो लाइक एस्टिमेट कर रहे हैं 15% का। तो मैं वेट कर रहा हूँ कौन कॉल का, उसमें क्या वो अपडेट करते हैं। तो अभिषेक, दिस ना, ये ब्लू स्टार वाला खुद बोल रहा है कि मेरा 40 तक का ग्रोथ होगा, ऐसा बोल रहा है. तो फिर अच्छा है. फिर मैनेजमेंट बोल रहा है तो अपने को खुद बोल रहा है, मतलब उस दिन हाँ, पेपर में भी था बड़ा आर्टिकल. यस खुद यस बोल रहा है यस। कि इतना ग्रोथ होगा. इंडस्ट्री बोल रहा है कि मेरा 20% का होगा, वो खुद बोल हम्म. रहा है मेरा 25 to 30 होगा। 30 होगा. Okay. कि ओवरऑल इंडस्ट्री मतलब सेइंग कि डिमांड। 20% ग्रोथ है, मतलब क्रेजी और लग रहा है ग्रोथ. कमर्शियल रेफ्रिजरेटर भी सर वो लाइक बिगेस्ट प्लेयर है अभी तो। हाँ, तो वो कमर्शियल तो में. करता है, बट कमर्शियल इंडस्ट्रियल में वोल्टास भी है ना. है। इंडस्ट्रियल का क्या पॉइंट है कि वोल्टास क्या बोले, मतलब जैसे एसी में केवल आता है, एसी का अगर उसका रेवेन्यू सेगमेंट देखो तो सिक्सटी हम्म. परसेंट एसी से आता है। वो होम हम्म. एसी भी हो सकता है और ये क्या बोलते हैं कमर्शियल भी हो सकता है। पर यहाँ पे जो बात हो रही है कमर्शियल रेफ्रिजरेटर की हो रही है, जिसमें उसका उतना ज्यादा नहीं है लाइक। कमर्शियल में नहीं है वोल्टास इतना. नहीं 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 वोल्टास नहीं का है. ना सर्विस इशू है. यस। वोल्टास का प्रोडक्ट ही इशू है. प्रोडक्ट तो है ही, है सर्विस भी है. उसका उसका सर एक बेसिक सा डिमांड इसलिए बढ़ रहा है, उसने बोला है मेरे को स्टोर पे कि वोल्टास लोअर प्राइस पॉइंट पे आता है। पर हाँ, ब्लू स्टार का एक एडवांटेज है कि वो लोअर और अपर दोनों में है। दोनों में आता है. वो मिड में आता है, तो वो दोनों सेगमेंट को लाइक अच्छा कैटर करता है जो खरीदना है करेक्ट. इसके लिए। वोल्टास का तो मैंने, तुमने ही बोला ना शायद से अभिषेक, कि क्रोमा में जाओ तो क्रोमा खुद का एसी बेच रहा है, वोल्टास नहीं बेच रहा है. हाँ, क्रोमा खुद का बेचता है. हाँ, वो आई वो थिंक क्रोमा इसलिए. है टाटा का. टाटा. हाँ, तो और वो भी वोल्टास भी टाटा का ही है ना. सर ये टाटा ग्रुप है, मतलब वो कुछ हम्म. भी करता है सर, वो कुछ भी और करता है. समझ हाँ, में. इसके लिए वो वोल्टास तो क्या है, इट इज लाइक TCS ऑफ एसी. TCS नहीं, सॉरी, टाटा मोटर्स ऑफ एसी. कभी चलता है तो चल गया,
रूरल डिमांड इंक्रीज तो वोल्टाज इंक्रीज, रूरल डिक्लाइन तो वोल्टाज डिक्लाइन। हम्म, आई हैव नेवर सीन है ना वोल्टाज, मतलब मेरी किसी भी फैमिली के इतने फैमिली मतलब रिलेटिव्स या इन लॉज या एक्सटेंडेड रिलेटिव उनके घर पे भी वोल्टास का एसी नहीं देखा मैंने किधर। सर इसका हम्म, कॉस्ट बहुत आ जाता है, लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है खरीदने के बाद भले हम्म, सस्ते हैं, हाँ लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो अगर ऑपरेटिंग कुछ कॉस्ट अगर हाँ। हुआ तो बहुत इनका ज्यादा है। अभी वो जनरल्स वगैरह का कम होता है क्योंकि वो अच्छे सब यूज करते हैं तो उनका हाँ, कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है। मेरे पास ओजन का एक एसी था, आई यूज फॉर 15 years। हाँ हाँ, मैंने एसी 18 अभी भी चल 18 रहा है, ईयर्स यूज किया, अभी भी 18 चल वो ईयर्स रहा यूज है। किया। सर उन्होंने वही बोला था, वो प्राइस पॉइंट के चक्कर में वो कम ले लेते हैं हाँ सस्ते वाले। सर हम जम्मू में मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव दिस वोल्टास का एसी, हम्म। मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब जम्मू से। में गर्मी भी होती है क्या? हाँ सर, बहुत गर्मी होती है। जम्मू में होती है। सर कश्मीर में जहाँ पे ठंड थोड़ा पड़ती है। नहीं वही बोला ना, वोल्टाज इज रूरल प्ले, वो रूरल हाँ। लोगों का। और आजकल क्या हो रहा है कि ना पीपल वांट्स टू गो टू अ मच फैंसी प्रोडक्ट, ऐसा आ रहा है लोगों के पास। तो वही वोल्टाज लो प्राइस पॉइंट पे है तो रूलर ही है उस हम्म, पे, बाकी सर नहीं है कुछ। पहले लोग अगर कूलर खरीदते थे तो वो अब एसी प्रेफर कर रहे हैं, पर लोअर पॉइंट लाइक वोल्टास, उस वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का उतना इशू नहीं होता। मतलब अभी हम्म। रूरल में इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट भी कम आता है और वो थोड़ा क्या बताऊं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी वो कुछ करते हैं इसके लिए। नहीं हम पर हमारा ये पर्सपेक्टिव टॉकिंग पॉइंट होम एसीज है ही नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल एसीज। हाँ एसीज वही। में तो बहुत है कंपटीशन, तो नो यस। पॉइंट डिस्कसिंग दैट। ओके, एनीवन एल्स? हेमंत? Yeah, hi, sir. हाय। So basically, last week what I was saying that EMS sector is to be watch out. Like I see विच like वन? EMS, ईएमएस, like ईएमएस, अच्छा EMS ओके is हाँ like आपका Dixon हो गया, like हाँ। PG Electroplast and like आपका Ipac Durables. Like आपको मैं is in terms of market share, like they have in room ACs. So PG Electroplast is very small player. So its share is nearly 9% in this कहाँ पे? category. In RAC category. आरएसी And का आप ओके। देखोगे ना EPAC durables. EPAC हाँ durables is growing. So it has currently 27% market share in RAC. And आपका जो Amber है, Amber has 56%. So ओके this EPAC durable is eating the share of Amber. So Amber in FY25 nearly have 62%. And although PG Electroplast has maintained its market share, like आपका जो EPAC durable है, it has gained market share from 22 to 27% of market share it has gained in 3 years only. ओके, उन And पीजी में no EPAC durables, EMS ईपैक है। sector, अच्छा ओके। EPAC durables. ईपैक And इज आप तो व्हाट? उस हिसाब से ईपैक तो इज पीजीईएल भी ग्रो कर सकता है ना, तो so पीजीईएल जो नौ so परसेंट का शेयर है वो भी तो 10-12% कर सकता है। सो एक्चुअली क्या है लाइक अभिषेक जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन लाइक सो जो पीजी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन आरएसी कैटेगरी 58% एंड ओके, जो आपका इपैक ड्यूरेबल्स का है बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज 71%। तो ऑल्दो ओके, गॉट इट। एम्बर का भी 71 ही परसेंट है बट पीजी इज नॉट एबल टू बैकवर्ड इंटीग्रेट कैपिटल नहीं होगा उसके पास उतना। because they are foraying into washing machine category. Although ओके। it is a market leader in washing machine in semi-automatic category. हम्म। ओके। So yes, sir. And sir, abhi like we were discussing ki 75% of the in terms of mobile phones and like आपका laptops and tablets is still dependent from Chinese players. Like abhi आज ही news था like because in terms of like China's export to USA, 31% export is from electric components to USA. So, like USA has been, very aggressive on imposing import duties on Chinese products. So they have been seeing a window of demand towards Indian players. They are wanting to divert their component supplies towards India's players, and they are even willing to offer a discounted price. So, AJ article है that they are saying that 5% discount they are planning to give these Indian players for these electric components import. So अभी like 5% का डिस्काउंट होगा like components आएगा compressor मोबाइल्स में भी आपका डिस्प्ले मॉड्यूल एंड कैमरा मॉड्यूल विच इज एंटायरली बीइंग इंपोर्टेड सो उसमें काफी मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड फॉर डिक्सन
एंड इवन लाइक जो टीवी डिस्प्लेस है, कंपनीज लाइक हाँ डिक्सन भी टीवी में है एंड टीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी है टीवी हाँ। में। तो उनमें काफी इम्प्रूवमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन। तुमने वो इसका क्या डिफरेंट डेफिनेशन किया था, RAC एंड व्हाट वाज सॉरी। दिस डिफरेंशिएशन यू जस्ट सेड अबाउट ACs? एक RAC था करेक्ट? या सो RAC इज रूम एसी सर। रूम AC, हाँ। फिर उसके बाद EPAC क्या था? EPAC Durable is a EMS company which अच्छा, manufacture EPAC ड्यूरेबल, अच्छा ओके yes फाइन। आई sir। थॉट इट इज अ सेगमेंट, वो तुम बात कर रहे हो, मुझे नहीं No, no, पता। no. ओके हाँ। Segment is our two commercial AC and RAC RAC those ना, हाँ नहीं, हाँ वो। two sign। अच्छा, EPAC व्हाट इज द मार्केट कैप ऑफ EPAC? EPAC is a mid cap place। EPAC ड्यूरेबल Yes sir। 3,000 ही है ना, स्मॉल। नाउ इट इज कॉल्ड अ स्मॉल, फाइन, छोटा प्लेयर। इन दिस इन दिस मार्केट अभी HT पे तुम्हारा EPAC कोई सुनेगा नहीं। But हेमंत, sir we are covering EPAC sir। सुनता है कोई HT पे? है कोई HT होल्डिंग है इसमें? Oh I think फाइन। सर आजकल 8% है। इंस्टी सुनने लगा है सर, छोटा कौन? कंपनी। But कौन? because sir the growth potential is very high in this segment sir, in this ओके, entire EMS sector। ये तो आप HDFC ने देखो, खुद ने बेच दिया है। आप अभी देखोगे लाइक एवरी इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हाउस इज ट्राइंग टू कवर दिस EMS सेक्टर। बहुत ज्यादा इनिशिएटिंग हाँ कवरेज रिपोर्ट आया है। हाँ विद इन मंथ आप देखोगे 3 इंस्टीट्यूशन, निर्मल बैंक, एक्सिस एंड एज वेल एज एक और था, एक शायद यस सिक्योरिटीज हैव गिवन देयर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट EMS सेक्टर। इवन वी आर प्रिपेयरिंग दिस इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट फॉर EMS सेक्टर। सो देयर इज ग्रोथ पोटेंशियल प्लस लाइक हाँ जो आपका PLI जो स्कीम आया है फॉर पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, जो लास्ट वीक ही आया, गवर्नमेंट हैज केम अप विद, हाँ वो भी एक एडिशनल बूस्टअप है। लाइक आप देखोगे मोबाइल फोन में जो डोमेस्टिक value addition is nearly 18%. And this Dixon has entered into a partnership with Chinese player for आपका mobile displays. So which will be, they are commercially starting the operation from this H2 for FY26 only. So that will give another domestic value addition by nearly 12%, sir. So by the end of FY26, their domestic value addition in mobile phone reaches to 30%. And they are also entering into a new partnership with camera models for with Japanese players. So within next 2 years, their domestic value addition in mobile phone category reaches to 40%. And with that, their margin improvement will be by nearly 200 bips. किसके you're talking? EMS के सबके? Dixon, Dixon sir. के, अच्छा ओके। So because mobile phone में Dixon is a player, sir. All those other players are not listed players. Like आपका जो Radiant है वो भी listed नहीं है, and they are comparatively smaller companies. So Dixon hold nearly 41% share in mobile phone category. Okay. Yes, sir. But this for this Dixon and all, I was tracking this and अभी Dixon तो बहुत बड़ा हो गया है overall, the P what it trades at. But the value add, probably people are moving towards much I will say costlier smartphones. So as he also mentioned, Sugesh, it has increased from 12 to 8 to 16,000. 17,000. So Yeah. that is a good sign for overall. But Dixon के अलावा कौन है? कोई तो वो बनाता होगा। There प्राइवेट are प्लेयर है other सर, लिस्टेड नहीं है फॉक्सकॉन कोई है, भी। sir, फॉक्सकॉन फॉक्सकॉन है पर ताइवान में लिस्टेड है सर वो। sir, वो फॉक्सकॉन listed इधर। players नहीं है ना नहीं, मेरा actually था वहाँ। कि Dixon ही क्यों ग्रो होगा, बाकी भी तो ग्रो होंगे, ऐसा मेरा था, ताकि why would he Yes. only have a So, sir, margin? actually, like the Dixon partnership with, आपका Vivo, Oppo, Samsung, Xiaomi has nearly 68% market share, and they और have सर उसने entered like 90% of their demand has been catered by Dixon only because the level of, the scale. One second. हाँ सर। And the scale that Dixon is operating is very high. Plus, जो आपका देखोगे, the backward integration is that Dixon is planning that within this year only, that Dixon will be able to reach the 30% domestic value addition, where industry players are still at 17 to 18%. तो इसकी ये मार्जिन इतने कम क्यों है? So नहीं the आगे? margin, hello. हाँ, yeah.
So Dixon is so आपका देखो ये Dixon is not only into mobile phones like it has entered into new categories आप देखोगे B2B category there is another segment within EMS जो कि आपका industrial application है हाँ so it has been aggressively into this categories like आपका जो defense sector होगा like आपका जो है mainly defense हाँ उसमें भी they are trying to enter and उसकी वजह से their margins has been impacting lately बट जो कि जो मोबाइल फोन में जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इफ दे आर एबल टू अचीव लाइक दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप उससे थोड़ा बूस्ट होगा बिकॉज मोबाइल फोन सेगमेंट कंट्रीब्यूट 75% ऑफ दिस ओवरऑल डिक्सन रेवेन्यू okay. यस सर But what if I say that mobile phones is declining, okay, in the next few years? Then सर सर आप वही वी वर डिस्कसिंग लाइक जो स्मार्टफोन द डिक्सन इज नॉट मेकिंग आईफोन्स करंट इन इंडिया हाँ ओके सो डिक्सन का जो है कि एक तो आपका जो रूरल पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन इज स्टिल लोअर लाइक जो हम्म, अभी किसी ने बोला था लाइक जो हाँ अभी डिमांड फ्रॉम दिस रूरल एरिया एंड टायर टू सिटीज आर बीइंग कंपैरेटिवली इन मोस्टली इनटू डबल डिजिट while जो अर्बन सेगमेंट का डिमांड है वो 5 to 6% टाइप्स correct. एंड हाँ जो कि एंड करंटली सर क्या है बिकॉज दिस एक्सपोर्ट बिकॉज क्या है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है इन दिस सेगमेंट हम्म, एंड आईफोन्स आर नॉट सो जो डिक्सन का जो डिवाइसेस आर नॉट मोस्टली एक्सपोर्टेड टू यूएसए बट टू अदर नेशंस लाइक आपका देखोगे जो ये कंपनीज लाइक सैमसंग ओप्पो दे आर एक्सपोर्टिंग टू दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ अमेरिका रीजन so it is also been immune from this tariff war that is going on. So if I ask you, the reason I was asking is because we were always as an analyst, as a fundamental analyst rather, इसके numbers are not working out. मतलब if I want to start a business of let's say Dixon, तो 32,000 करोड़ की सेल्स पे मैं 800 करोड़ कमा रहा हूँ. समझ रहे हो ना? You see this? Yes, sir. Yes, sir. कितना मतलब is it a possible a business line? मतलब मैं करूँ नहीं ना ये business ऐसा है. कितना हो गया इसका मार्जिन? 10 तक का भी नहीं हुआ. 10 क्या? I think if you talk about 865, let's do it. Like 2%. 2% margin में why should I operate? The question comes. Okay. Is it gonna increase? ये अभी का मतलब if I look at it as a startup phase कि चलो इसका ना काफी ज्यादा कॉस्ट है जो कम हो जाएगा फ्यूचर में जाके तो तभी इसका ना मार्जिन मतलब इम्पैक्ट होगा. Is that the case? Yeah, you are just playing on the sales part. Because as a fundamental analyst, as a CA या CFA ना ये तुम गलत बोल रहे हो. ऐसा बिजनेस करना ही नहीं चाहिए. तो तुम अगर डिमांड फोकस कर रहे हो तो इफ यू गो रॉन्ग ऑन द डिमांड द स्टॉक विल क्रैश लाइक एनीथिंग. सो यू हैव टू बी. क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आया था मुझे कि एक स्मार्टफोन यू से स्मार्टफोन है चलो एक एप्पल सैमसंग का एवरेज कॉस्ट इज 1 लाख. ओके स्मार्टफोन का हाउ मच इज द पार्ट डिक्सन कितना बनाता है उसमें? व्हाट इज द प्रॉफिट व्हाट इज द सेल्स इन डिक्सन कि एक 1 लाख के फोन में डिक्सन का शेयर कितना आता है? लेट्स से यू आर सैमसंग तुम 1 लाख का फोन आगे बेच रहे हो तो मुझे कितना दे रहे हो? है क्या डेटा हमारा? मतलब पता है? No, sir. Sir, वैसे डेटा नहीं है पर ना सर डिटेल वो कॉन्ट्रैक्ट share- मैन्युफैक्चरर ही है सर उसका कम रहेगा मार्जिन एज कम्पेयर टू क्या जो होगा? सैमसंग कमाता है सैमसंग को कमाता है उसका क्या होगा? उससे कम ही रहेगा डिक्सॉन का क्योंकि वो ऑब्वियसली वो तो कॉन्ट्रैक्ट कम ही होगा. मैन्युफैक्चरर नहीं मैं तो वही पूछा कि सेल्स कितना है. जो सेल्स बढ़ रहा है I was just assuming. नहीं मेरा एक क्वेश्चन था कि when he says 75% of the sales is coming from mobile phone and what if the mobile phones demand impacts या यहाँ पे कोई और प्लेयर आ गया because this is already running at a peak. एंड ये बिजनेस फंडामेंटली तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारा तभी भी डिस्कशन हुआ था कि फंडामेंटली कोई भी एनालिस्ट को ये एक स्टॉक अच्छा नहीं लगता बिकॉज इतना इतना लो मार्जिन पे काम करता है. वन डिक्लाइन इन डिमांड एंड दिस इज गॉन इनटू लॉसेस. बट इज इट ये जो कॉस्ट है कम होने वाला है या कोई Sir, कमोडिटी है? due to this backward integration, they were able हाँ. to improve the margin. That was what I'm saying. Like जो कि they have entered into display modules. Just they will be supplying display module not even to other players. जो कि Redington types जो player है, they are हाँ. country importing from China only, sir ना. So that will boost the margins for these. And plus जो PLI जो incentive है उससे भी तो additional incentive मिलेगा इधर. हाँ तो कितना होगा मार्जिन एक्सपांशन? नहीं नहीं मेरा है कि ये इतना ही रहने वाला है या इज देयर स्कोप? क्योंकि बाकी अदर्स भी सब अभी जस्ट हमने इसका देखा पीजी प्लस का वो तो 10 तक का कर रहा है. तो इज देयर रूम फॉर इंप्रूवमेंट ओवर हियर? So
हेलो। क्योंकि मेजरली मुझे लगता है ये वेरिएबल कॉस्ट है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट मटेरियल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स कितना भी बढ़ जाए, इज इट वेरिएबल कॉस्ट गोना डिक्लाइन? तो वही तो प्रॉब्लम है। लाइक आप देखोगे जो टीजी इपैक और हम जो अदर जो एक वो था एम्बर, वी आर टॉकिंग, दे आर नॉट इनटू लाइक मोबाइल फोन्स, एंड हाँ जो कि बिकॉज दे आर मेजर प्लेयर्स इनटू आरएसी सेगमेंट, एंड जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन आरएसी सेगमेंट हैज ऑलरेडी रीच टू 70%, एंड हाँ उसके बियॉन्ड अब हो भी नहीं सकता बिकॉज कंप्रेसर आर इंटायरली बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम China only. हाँ And your mobile phone with domestic value addition is nearly 17 to 18%. So the margin improvement scope is only possible through backward integration only. हाँ And there is a heavy, there is strong headroom for this margin expansion due to this lower domestic value addition in mobile phone category. So that was I am saying like. So backward, let's say I don't understand the business. If you are pitching me this stock, मुझे बता कि Dixon का क्या raw material है? What is this raw material using to make मोबाइल बनाने को So, क्या लगता है? so yeah, so there is three actually क्या है तो मोबाइल फोन वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, आपका हम्म सेमीकंडक्टर एंड नॉन सेमीकंडक्टर. सो ओके सेमीकंडक्टर फोन्स नियरली 45 to 50% ऑफ ओवरऑल दिस हम्म आपका जो बिल ऑफ मटेरियल है फॉर मोबाइल फोन्स, हाँ एंड रिमेनिंग हाफ इज कम्स फ्रॉम नॉन सेमीकंडक्टर, जो कि आपका है लाइक जो आपका है प्लास्टिक मोल्डिंग, हाँ एंड जो आपका है कैमरा मॉड्यूल्स एंड डिस्प्ले मॉड्यूल्स. सो जो ये जो डिस्प्ले मॉड्यूल एंड कैमरा मॉड्यूल्स है फॉर्म्स नियरली 26% ऑफ ओवरऑल बिल ऑफ मटेरियल, एंड इसी के लिए दैट गवर्नमेंट हैज कम विद दिस न्यू पीएलआई स्कीम. अच्छा सो यस सर. सो अगर लाइक दे हैव ऑलरेडी फॉरवर्ड इनटू डिस्प्ले मॉड्यूल्स, like camera module भी they are announcing the partnership by Q4 this year only. बट वो सैमसंग तो बोलता है कैमरा तो सोनी बनाता है। Cam so लाइक जो आपका जो सैमसंग का बोल रहे हो लाइक हाँ वो सभी जो जो आपका कैमरा मॉड्यूल लेता है वो हर डिवाइस का अलग अलग होता है. अगर आप जो प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट्स देखोगे लाइक जो हाँ S25 अल्ट्रा एंड है, हाँ वो कैमरा जो अपने सोनी का ही सोर्स करते हैं, एंड हाँ वो भी वो इम्पोर्ट ही होता है लाइक फ्रॉम चाइना से ही हाँ इम्पोर्ट होता है वो. हाँ सो एंड जो आपका जो ये मास कैटेगरी का जो स्मार्टफोन है लाइक 8,08,000 टू आपका 30 या 25,000 टाइप है, जो कि मेजर मार्केट इसी में है, वो आर नॉट सोर्स फ्रॉम सोनी बिकॉज वो काफी कॉस्टली होता है ओके सोनी के. एंड सस्ते देयर वाले आर अदर प्लेयर्स लाइक एचकेसी प्लेयर एंड हाईली ग्रुप, जो कि कंप्रेसर में भी है चाइना में, वो ही मेजरली सप्लाई करते हैं आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी को. बिकॉज जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो बहुत कम, एक्चुअली मेरे पास डेटा नहीं है प्रीमियम हाँ स्मार्टफोन का, बट जो कि रफ एस्टिमेट है लाइक मल्टीपल एरिया से जो 80% है जो डिक्सन का वो इनटू मास स्मार्टफोन कैटेगरी से. ओके मास स्मार्टफोन कैटेगरी ओके या okay fine. So let's say if I talk about now, I am not a big fan of smartphone, matlab, of mass smartphone. I want to just talk about the premium products because margins उसी में आएगा. मतलब Samsung भी probably they don't want to sell mass products, they want to sell, example I'm giving, they want to sell premium products. This is what I'm talking about in my theme कि मुझे लगता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स का सेल ज्यादा बढ़ेगा बिकॉज पीपल मतलब जैसे अभी जैसे टैक्स कट होगा तो जैसे अगर मेरा 50,000 बचता है तो प्रोबेबली आई विल गो एंड बाय एन आईफोन और प्रोबेबली सैमसंग का हाई एंड फोन. कि आज मैं देखता हूँ पीपल जो फोल्ड आता है वो 1,50,000 का आता है, आई सी उसका सेल्स बढ़ रहा है. मतलब पीपल आर ऐसी लोगों के हाथ में सोल्ड या फिर S24 S25 पीपल हु आर 5-10 lakhs के कैटेगरी में होगा उनका सैलरी, दे आर पीपल आर अफोर्डिंग. व्हाई? बिकॉज ऑफ लो क्रेडिट ग्रोथ. करेक्ट कि लो क्रेडिट मतलब तुमको वो ईएमआई पे मिल जाता है. वो काफी मीम्स भी आए थे बीच में इंस्टाग्राम पे ना कि सबके पास आईफोन है अभी, ऐसा हो गया. तो दिस इज व्हाट आई फील लिटिल बिट ऑन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि मास सेगमेंट की हम बात तो कर रहे हैं बट ग्रोथ जो आ रहा है इवन नाउ दैट सेंस ये लोग ने जो बोला अभी योगेश ने बोला कि पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स हाई एंड प्रोडक्ट्स. तो ठीक है अभी 17 है बट व्हाट अबाउट फ्यूचर, व्हाट अबाउट नेक्स्ट 5 years? वो 17 का शायद से 50 भी हो जाए. पीपल आर लाइक कि हमको महंगा ही फोन खरीदना है. व्हाट अबाउट देन? बट जो आपका अर्बन मार्केट इज ऑलरेडी यूनिवर्सली पेनिट्रेटेड सर, 100% पेनिट्रेशन हो चुका है. एंड लाइक हाँ जो
जो इनकम ग्रुप दैट वी आर रेफरिंग, लाइक जो टैक्स कट आए 8 लाख to 12 लाख का जो इनकम ग्रुप है, दे हाँ ऑलरेडी ओनिंग द आईफोन सर. करेक्ट You हाँ can you It is visible that this category has already owning this 16 Pro okay, जो कि लेटेस्ट है, हाँ वो ऑलरेडी ओन कर रहे हैं. लाइक जो टैक्स बूस्ट आएगा उससे हार्डली कुछ मैटर फर्क पड़ेगा लाइक टू दिस नहीं नहीं, मेरा तो ये प्रीमियम कंसर्न कैटेगरी. था, आई एम नॉट जजिंग, मेरा तो ये कंसर्न था कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ थीम ऑफ इंडिया वेयर ना पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ये डिक्सॉन मास में क्यों है? एंड अगर वो मास में, एंड मुझे जैसे तुमने बोला कि कैमरा मॉडल ये सब बनाता है, तो मास सेगमेंट तो उसमें तो काफी ज्यादा मतलब लोगों का ऐसा है कि प्रोडक्ट्स तो ले रहे हैं, बट उसमें तो कभी यू कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. जैसे सर डिक्सॉन इज योर कंपनी, तुमको उसमें कितना सर पैसा कमाओगे तुम? सर मैं रेफर कर रहा था ओवरऑल इंडिया का, कि जो हाँ प्रीमियम कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हार्डली 20% है ओवरऑल मोबाइल का. अच्छा ओके, नहीं नहीं, बट मेरा वो ये ना कि बट दैट विल इंक्रीज ना फ्यूचर में, आई एम फोरकास्टिंग दैट कि 20 है, लेट्स से इट गोज टू मोर 40%, कि सर 40% पीपल आर वो यूजिंग. बिजनेस तो ऑटोमेटिकली फिर डिक्सॉन को ही आएगा ना सर. हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, इज इट? अभी तो नहीं है ना भाई, ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा आगे मेरा पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ बिजनेस ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई एम अ बिजनेस एंड ये मैं 2% कमा रहा हूँ, तो मुझे आइदर आई एम मिसिंग समथिंग ओवर ईयर, मतलब जैसा मेरा एनालिसिस है कि आई थिंक कि ये टर्न अराउंड हो जाएगा, कि इट कैन 2% का 10% तक आ जाएगा मार्जिन. लेट्स से आई एम, जैसे तुम बोल रहे हो ना, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं एंड मेरा कॉस्ट कम कर रहा हूँ, तो ये 10% तक आना चाहिए प्रोबेबली, तो ही मैं बिजनेस करूँ. या फिर मेरा आरओसी, यहाँ क्वेश्चन आता है फंड मैनेजर से कि ना मेरा आरओसी यहाँ पे 30 तक का है, ठीक है ना, हाउ इज इट पॉसिबल कि 30 तक का है मेरा मार्जिन कम है? तो ये कैसे हो रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल? 30% इसके मार्जिन है एंड इसका प्रॉफिट फिर 2% पे कैसे काम कर रहा है ये? मतलब इसको खर्चा ही नहीं कर रहा है ये, कैपिटल ही नहीं लगा रहा है, और तुम अभी बोल रहे हो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है. तो ये चीजें ना मेरे थोड़े, मतलब आई एम फीलिंग कि किधर मैच नहीं हो, पॉइंट्स ना डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे. सर तभी मे बी लोन ना सर, क्या? डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ना सर, हाँ जस्ट वो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, मे बी जस्ट एक से सोर्स कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग करके वो ब्रांड को सेल कर रहे हैं, मे बी उसके नहीं नहीं, वजह वो तो से. कॉन्ट्रैक्ट में ही है. नहीं मेरा वही, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज आई एम मिसिंग एनीथिंग ओवर ईयर कि बिजनेस में कुछ है, क्योंकि ये सब फंड मैनेजर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन यू गो एंड पिच दिस काइंड ऑफ 114 टाइम्स के पी का तुम स्टॉक किसी को पिच करने जाते हो, दे आर लाइक कि भाई मैं इसमें बिजनेस ही क्यों करूं, ये मार्जिन क्यों नहीं कर रहा है, अगर इतना इसका आरओई ऐसा है 24 तक का, तो 24 तक कितना होगा, 24 का भी 40 करेगा ये? इज इट व्हाट यू मीन? अभी तो हो गया इतना. सर मेरे को डिक्सन में एक छोटा और प्रॉब्लम दिखा। आप अगर कैश फ्लो खोलिएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग वो 2020 से केपेक्स कर रहा है, लेकिन वो एक होता है ना कि हम केपेक्स क्यों करते हैं ताकि एक आगे फ्यूचर एक प्रॉफिट अच्छा खासा आए। तो वो हाँ चीज जैसे आपने बोला 2% उससे बढ़ना चाहिए ना, वो केपेक्स आना चाहिए। अभी भी तो देखिए ये 5 साल तो से केपेक्स नहीं नहीं, तो अभी कर रहे हैं ना वो, तो वही है परस्पर कि आगे क्या होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट है। लेट्स से 4 2020 से 5 उसने इयर्स. करना शुरू किया, उसको अब धीरे धीरे कैपिटलाइज होना चाहिए ना सर। इट हैज बीन 5 नहीं वो इयर्स। तो होगा ना, तो नहीं मेरा वही है कि होगा या नहीं, वही मैं हेमंत की बात थी कि आई वाज आस्किंग कि फ्यूचर में ये होगा कि नहीं, अभी मैं कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ इस पर, ऑल फाइन. बट एम आई मिसिंग समथिंग हेमंत? तो जस्ट ट्रैक इट, या केशव से एक बार बात कर लें, ऐसे तुम पूछना उसको कि सर ये ऐसे नंबर्स तो खास नहीं लग रहे, तो क्या, क्योंकि ये ऐसा टीवीएस में भी हुआ है. लुक एट टीवीएस, टीवीएस का भी मार्जिन 2 and 3%, बट उसके EBITDA मार्जिन देखो, इसके EBITDA मार्जिन इतने साल तक डिप्रेस्ड है, 6 6 7 7%. आई वॉज ट्रैकिंग दिस स्टॉक, 3% ही करता है देखो, 12,000 पे 500, लाइक 3%, बट लेस देन 3, बट देन इट इंक्रीज यू सी. तो 2017 के बाद जो ग्रोथ हुआ दैट वाज फेनोमेनल फॉर टीवीएस. 17 तक भी हुआ था क्योंकि सेल्स ग्रो हो रहे थे. तो ये ऐसा होगा क्या, क्योंकि ऑटोज में मैंने बाकी के कंपनीज में देखे थे कि टीवीएस, बजाज मेक्स अराउंड 18%, तो टीवीएस भी वो पॉइंट पे कभी ना कभी तो पहुंचेगा, बट वो डिक्सन का है क्या? अगर है तो इट इज अ गुड गुड बाय अभी, वरना आई विल स्टिल से इट इज एन एक्सपेंसिव बाय. ऐसा 2 क्वेश्चन इनटू इट. इसका भी आरओ 23% था, इसका आरओसी देखो सेम. आई वाज जस्ट डूइंग दिस केस विद टीवीएस जो मैंने ट्रैक किया था ऐसे कंपनीज, अभी इसका आरओसी देखो 15% ही था, 20% पे था, अभी डिक्लाइन हो गया, बट द स्टॉक हैज इंक्रीज बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन चालू हो गए. तो फिर ऐसा है कि इसको सिर्फ पैसा डालना है, 15% तो ऐसे ही कमा लेगा वो.
तो वो डिक्सन का भी 30% है। तो मेन इज मार्जिन इंप्रूवमेंट। अगर ये मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं होता है, then it is becomes very difficult for someone to convince about Dixon. तब भी हमारा बहुत डिस्कशन हुआ था जब मैं एनालिस्ट था, बट फिर मार्केट सेज ऑल अबाउट इट, कि मार्केट ने जो था वो दिखा दिया कि डिक्सन यहाँ से भी हुआ है। बट द क्वेश्चन का अभी ये 13,000 से वापस 30,000 जाएगा क्या, ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, थिंक फ्रॉम दिस एज अ सीए पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ सीएफए पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इज इट वर्थ डूइंग बिजनेस, या ऑब्वियसली यू आर मिसिंग समथिंग, वी आर मिसिंग समथिंग ऑन इट। इसके कॉस्ट तो कम होने वाले। अभी मैं बोल सकता है कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल कैन किक इन, बट इसके ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ही इतने ज्यादा है, तो वेरिएबल कॉस्ट से ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं आएंगे कि ना। जस्ट डू द मैथ हेमंत, यहाँ पे ना, यू रिमूव द डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस, ये 4% कर रहा है, इसमें डेप्रिसिएशन निकाल दो, 162 करोड़, 705 minus 162 is 543 divided by your 17,691. 3% EBITDA margin, EBIT margins. मतलब one drop in sales and the company goes for a toss. But वो तो, so you have to know the industry in and out. फिर कोई तुम जा पिच करने जाओगे तो सर नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि गिरेगा ये। जैसे यू आर टेलिंग मी कि सर ये नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि मास सेगमेंट में जा रहा है, बट वॉट एवर आई एम फीलिंग लुकिंग एट द सिनेरियो, कि सब प्रीमियम की बात करें तो फिर डिक्सन मास में क्यों है, और मास कब तक चलेगा फिर। मतलब इट इज लाइक यू सेल अ चॉकलेट 1 रुपए का फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, या कम अप विद 100 रुपीज चॉकलेट, तो तुम पे क्या करना है तुमको, तो तुम बचाओ कि 1 रुपए चॉकलेट पे तुमको कितना वैल्यू होगा। हाउ डू यू वैल्यू मारुति और मर्सिडीज, वैल्यू किसको करते हो, मतलब मारुति Maruti. also good business, मारुति कुछ बना, मर्सिडीज इज वैल्यूड मोर ना, पी केस में Yes. प्रीमियम प्रोडक्ट है ऐसा। फिर या फिर लाइक अ टोयोटा, कि हाँ ये तो ग्रो ही होने वाला है, मतलब ये रुकने वाला है नहीं, इसका ग्रोथ तो इस मैक्सिमम है ना, टू द पीक। तो बस वही है एंड नथिंग एल्स। ओके, थिंक अबाउट इट, मतलब जो नंबर्स डालोगे ना तो फिर सोचना कि बाकी सब ई पैक कंपनीज करोगे ना, तो देखना कि उनके कितने मार्जिन है, इसका कितना है, एंड ऐसा क्या कर रहा है, ये अलग है कि 4% पे ही इतना, हाउ इज एबल टू सस्टेन एट 4%। Actually, Dixon का comparable है ही नहीं actually EPEC और PG आप देखोगे, because Dixon is not into ACs. Dixon is mainly into mobile phones and TV. टीवी, And जो उनका जो है dependence of import is very high. So जो कि TVs में भी nearly 65% are imported. ओके ओके फाइन, नहीं आई एग्री, मतलब जस्ट फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं तुमको कंपनी दिखाऊं ना हेमंत, इफ आई टेल यू दिस कंपनी, आई डोंट टेल यू कि कौन सी कंपनी है, सिर्फ फंडामेंटल्स दो एक के और दूसरे काम, तुम बोलोगे सर ये कंपनी तो बहुत बकवास है, ऐसा जो भी हमने फाइनेंस पढ़ा है उसके चक्कर में ऐसा। करेक्ट, Yes, sir. यू डोंट नो द इंडस्ट्री, सिर्फ तुमको नंबर्स दे दो, बोलोगे जज टू कंपनी, तो जैसे ये 3% मार्जिन करता है, रादर आई विल बाय अ कंपनी हु हैज 10% मार्जिन प्लस 100 टाइम्स पी, तो इज जस्टिफाइबल। अभी इधर क्यों हुआ ना इसका ग्रोथ, आई विल टेल यू। जो तुम बोलते ना मोबाइल फोन्स एंड टीवी, तुम ही बताओ कोविड में क्या हुआ था, आफ्टर कोविड व्हेन द योर अनलॉकिंग हैपन, स्मार्टफोन वाज अ नेसेसिटी Yes, sir. रूरल में भी, क्योंकि वो तुम अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तुमको वीडियोस देखना है, सब कुछ ऑनलाइन पे था। आई स्टिल रिमेंबर टीचिंग टू पीपल इन आंध्र प्रदेश, उन्होंने खास मोबाइल लिया था सीखने को, क्योंकि लैपटॉप लेने का उनको परवटर नहीं था, वाज लाइक एक्सपेंसिव था लैपटॉप, तो मोबाइल में लेके वो लोग ना ये कर रहे थे, क्लासेस अटेंड कर रहे थे। पीपल यूज्ड टू स्टे इन टियर 3 टियर 4 सिटीज, ऐसा वो था। टीवीज का सेल्स हुआ था इज बिकॉज वी, क्योंकि घर पे सब बैठे थे, एंड फ्लैट स्क्रीन का देयर वाज अ डिमांड फॉर हाई फ्लैट स्क्रीन। और अभी आई हैव 2 फ्लैट स्क्रीन इन माय, मेरे घर पे, क्योंकि तब लिया था मैंने, बिकॉज तब मेरे को लगा था घर पे बैठा हो ना तो बड़ा टीवी चाहिए, सब लोग देखते हैं, बट अभी आई डोंट सी इट समवेयर कमिंग। तो यही था वो फॉल, मतलब 17,000 से व्हेन इट कम टू 12,000 इन दिस Jan 25 से एंड अभी तक, तो द क्वेश्चन स्टार्ट्स कमिंग ऑन योर
fund on your degrees कि भाई तुमने ये बोला ही क्यों था. ये ऐसा होता है मार्केट में, when you be in the market ना, तो तुम इतने सीए हो सीएफए हो, तुमको इतना नहीं समझता है कि इसके फंडामेंटल्स खराब थे. ये तो रैली था, सभी चले ये स्टॉक में. ऐसा कौन सा डिक्सन अकेला चला है? तुम 10 स्टॉक निकल के चलो, 10 स्टॉक भी ऐसे चले. करेक्ट ना? इट इज नॉट ओनली डिक्सन विच हैज ग्रोन इन दिस रैली. Yes, sir. अभी क्या ना, हाउ यू प्रूव योर हाउ यू प्रूव योर डिग्री नाउ. यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि तुम तुम्हारा फाइनेंस डिग्री कैसे प्रूव करते हो यहाँ पे. तो तुम बोलते हो कि हमने सब जो पढ़ा है वो गलत था, कि मार्जिन होने ही नहीं चाहिए बिजनेस में, ऐसा था. ये आता है क्वेश्चन. ये हुआ था मेरे साथ. मेरा एक फ्रेंड था, ये बोलता सीए सीएफ है. उसको बोलते कि तुम क्या बेसिस पे मेरे लिए स्टॉक लेके आई है. मतलब तुम सीए हो, तुम सीएफए हो, तुमको इतना नहीं समझता कि नंबर्स ही इज नॉट ट्रैकिंग. मतलब तुमको रेशियोज ही नहीं समझते. ऐसा यहाँ से ही चालू हुआ उसका. दो ही एग्री किया, वो ही वेंट रॉन्ग, बट वो तो डिमांड था जो सभी स्टॉक गए. इट इज नॉट समथिंग दैट डिक्सन हैज ओनली डन. डिफेंस स्टॉक खोल के देखो, सब डिफेंस स्टॉक ऐसे ही हुए, बूम. Yes, sir. वो है ऐसा. जस्ट फिगर इट आउट ना व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सेल एंड नंबर्स, कि डज दिस नंबर मेक सेंस, या यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. बिकॉज मार्केट इन नेक्स्ट 2-3 years ही विल टेल यू कि तुम राइट थे या रॉन्ग थे. आज Yes, sir. 13,000 है, तो कल ये 13 का 26 भी हो सकता है, कल 13 का 6 भी हो सकता है. द वे इट हैज बीन ट्रेडिंग. एंड वन डिप इन स्मार्टफोन डिमांड विच आई एम सीइंग, तो मेरे को लग रहा है कि डिमांड is moving towards shifting towards high end products. ऐसा है. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, guys. Thank you. I think it's too late today. Okay. Fine. So guys, tomorrow I'm not available, so कल नहीं होगा. कल will not have a call. We'll meet directly on Saturday. Okay. Saturday, the timing is different, I Saturday think. हाँ. Few have 3 to 5 और वो ऑटो का वर्कशॉप. Others are at 11. जिनका फाइनेंशियल मॉडलिंग चला, that is from 11:30 to 1. रजनी, you तो have जिनका about 3 लास्ट to वीक 5. शुरू हुआ है, जैसे मेरा वो 3 to 5 है ना. हाँ, तुम्हारा 3 to 5 जो ग्रुप में बना है ना अलग से, उनका 3 to 5 हाँ ही. ठीक है ठीक. हाँ. Okay. EM ओके सर. 9 is 3 to 5. Sir, one thing I just want to say, like all the, as you shared with us the day to how to write the newsletter. हाँ. So I watched the video and video get stopped at 1 hour 17 minutes. I don't know, there is some error or something. You may check or other people can guide me. Okay. And the second thing, like I think the most of guys are senior. Of course, I am the new one. No, they So are not senior. They are just 3-4 months old. That's yeah, it. yeah, of course, हाँ. but of course they are indulged in doing these हाँ. things. So I am somewhere new. So like I read the news as well. Okay, like Tata things and every, but the way they explain. So of नहीं course, नहीं, you don't have to explain how they explain. How Akash explained. no, I no, think I sorry, don't want Sugas to explained. copy. No, no, I don't want to copy. I'm just asking like about the research and the data gathering, all these things. So I just want you will share some tips, or we just need to refer the recorded videos. No. See, Hemant is working with HDFC Securities. Abhishek is working with ICICI Securities. Apart from those two, if other one is saying, then he's at your level. Don't compare with them. It is just you have to move at their level. Okay. So yeah. So Yes. start with talking in the class rather than just listening. Okay. Whatever you, Sugosh also said one thing only, na. From that thing we elaborated more. So you can also say one thing, na, that okay, ठीक है, ऐसा हुआ था, उसने कैसे बोला कि सर डिमांड बढ़ गया था. स्मार्टफोन, आई थिंक दैट स्मार्टफोन डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज. उसने भी प्राइसिंग बोला कि प्राइसिंग 12 से 15 हुआ. दैट्स इट. वही बोलना है तुमको, सिर्फ डेटा स्पेसिफिक ही बात करनी. Okay, so I just want like how to get more data and using the different software. पहले न्यूज़पेपर तो पढ़ो 5, Yeah, फिर yeah. डेटा के ऊपर जाओ. Okay. एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग अ न्यूज़ फर्स्ट. पहले ही तुमको 6 क्यों मारना है? No, I don't want to. I just want to go with the gradual pace. No. But No, you I'm don't just think. ये सिर्फ तुम याद रखो, बिकॉज व्हाई आर वी डूइंग दिस कॉल, ताकि इंटरव्यू में कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यू रिमेंबर, अच्छा दिस गाय हैज टोल्ड, तो तुम बोल सकते ये रिसर्च मैंने किया है. The Hemant that research is doing, we can use that in interviews. क्योंकि he gives much more detailed answer. yeah. So वो तो इंटरव्यूज के लिए है. अभी के लिए तो तुमको अगर पता ही नहीं क्या चल रहा है तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि क्या है. लेट्स से अंजल इज आल्सो न्यू.
बट आज वी टॉक अबाउट पीजी पॉलीप्लास्ट, अभी नाउ कितने सारे डेटा दिया अंजल सॉरी हेमंत ने कि ना आरएसी इज डिफरेंट एंड देयर आर अदर कंपनीज आल्सो हु मेक्स दैट, तो वो तो इट वाज एन ऐड ऑन फॉर अंजल, ऐसा है। आज मैंने वो पीजी प्लस, ही वाज ट्रैकिंग ब्लू स्टार फ्रॉम लास्ट 2 months, तो उसको एक ऐड ऑन मिल गया आज। तो दिस पीपल, द नॉलेज दैट यू गेट इज जस्ट एन ऐड ऑन विद अदर्स, बट फर्स्ट यू शुड ऐड समथिंग टू गेट एन ऐड ऑन नॉलेज, Yeah, yeah. इट्स लाइक दैट। So first start speaking, make a newsletter. I have not seen any of your newsletter as of now. Yeah, At yeah. least make a newsletter ना, तुमको क्यों वो लोग की तरह क्यों बनना है? No, Everyone I is different. Everyone is yeah, different. of मैं नहीं course. बोल सकता हूँ कि he is good, he is bad. Hemant might be good than me as well. सभी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं ही अच्छा हूँ Yeah, no, just I'm because I just have experience. asking. Yeah, I'm just asking your advice. So, नहीं, how first to- write, start writing. Till you don't write, till you are not going wrong on it, it's not. तो भाई आकाश को मैंने पूछा when he talk about टाटा स्टील, अच्छा था या बुरा था, yeah. तो ही ऑल्सो स्टार्टेड ना विद अ सिंपल, वो तो बोल सकते हो ना तुम, वो तो नहीं पूछा तुमने कि सर ये लोग ने इतना इजी दिया, इजी था ना, क्या बोला उसने, आकाश ने क्या बोला था सर About yeah, at that टाटा time, स्टील के बारे में? 1600 like employee हाँ, cut hai, and तो then वो when तो you ask like it is good for the employee or not, then हाँ, then तो yeah, उसमें not क्या good. नहीं समझने तेरा क्या था, उसमें कुछ था क्या? No, it was nothing तो वो very. तो नहीं बोला तुमने, सर हेमंत ने क्या बोला वो बताओ सर, वो मुझे नहीं समझा। अरे वो तो तुम बोलो जो आकाश ने बोला है, एटलीस्ट स्पीक ऑन दैट, Yeah, करेक्ट? sure. क्या क्या? सर हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। सर लास्ट वीक जो ऑटोमोबाइल सेशन का वर्कशॉप हुआ था सर, उसका रिकॉर्डिंग का लिंक आई है एम ना नॉट। वो उसमें, वो वर्कशॉप के इसमें है ना, जो लिंक है ना, वीडियोस का जो लिंक है ना उसमें है ना। सर हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है, हाँ, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जो है वो, हाँ हाँ। ओके सर, दिस सैटरडे विल हैव द क्लास एट 3 o'clock सर, 3 o'clock या एंड मॉर्निंग में सर फाइनेंशियल मॉडलिंग का। मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग का, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। तुम कहाँ पे थे इतने दिन? सॉरी सर। इतने दिन कहाँ पे थे तुम? सर आई वाज नॉट वेल सर, आई वाज इन द हॉस्पिटल सर। आई ओके अटेंडेड लास्ट वीक्स ऑटोमोबाइल्स क्लास एंड आई वाज नॉट वेल। ओके ओके, थैंक फाइन, यू सर। ओके, वेलकम। ओके ओके गाइस, थैंक यू, सी यू डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Thank you. Bye bye. So. बाय गाइस, बाय बाय।